Record. Good afternoon, everyone. I'm Saisha Nur on behalf of Kirin Advisors. It's a pleasure to welcome you all to Investor Conclave, Connect Summit 2026, powered by Avinash Mentor and co-powered by Kirin Advisors. Today marks the first day of our two-day summit, featuring a powerful lineup of focus management meetings. This is the ninth interaction of the day with VL Infra Projects Limited. From the management side, we have with us Mr. Raj Gopal Reddy Andam Reddy as Chairman, Chief Executive Officer, and Managing Director. Hello, sir. Good afternoon. We have Mr. Vamakrishna as CFO. Hello, sir. Good afternoon. From Avinash Mentor team, we have Miss Jagruti. Hello, good afternoon. With that, now I hand over the floor to Miss Jagruti. Over to you. Thank you. Before we start the section, let's have a quick overview about the company. VL Infra Projects Limited is an infrastructure development company introduced in Ahmedabad in 2014. Engaged in residential building, construction, road projects, irrigations, water supply, and gas supply infrastructures. The company executes government and institutional infrastructure projects with a strong focus and quality, safety, and environmental sustainability supported by an experienced professional team and modern execution capabilities. With that, now I transfer the floor to the management for a brief overview. Over to you, sir. Good afternoon, everybody. This is Rajagopal Reddy, MDVL Infra Projects Limited. Basically, I'm a mechanical engineer and did my MBA in construction management. Due to that, I am majorly into water supply projects division only. In 2000, I have started my career in a limited company with site engineer post. From 2000 to 2012, I have been into different roles in different companies as a site engineer to regional head position up to state head level. In 2012, I have started my own business as a VL Infra Projects. That is a partnership firm in 2012. After that, in 2014, we have converted this into private limited company. So limited and private limited company started on 2014 December onwards. In the initial year, as I told, I am in mechanical engineer. I am a mechanical engineer. So I have started my career in water supply projects because वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स रहेंगे पाइप मैन्युफैक्चरिंग के लिए और एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू में भी मैकेनिकल रिलेटेड ऑलमोस्ट 40% तो रहेगा ड्यू टू दैट आई एम इनटू दिस फील्ड मतलब वाटर सप्लाई एंड इरिगेशन सेक्टर में बिजनेस में भी आने के बाद सेम बेस में मेरा जो एक्सपीरियंस है इसका बेस पे मैंने इरिगेशन प्रोजेक्ट से स्टार्ट किया था 2014 में एक इरिगेशन प्रोजेक्ट लिया था अराउंड 50-60 लैक्स का प्रोजेक्ट वैल्यू है वहां से लेके 2014-15 में हमारा फाइनेंशियल्स देखा गया तो इट इज 4 crores टर्नओवर ओनली इन 2014 के बाद 2016 में हमको गवर्नमेंट ऑर्डर्स मिला इन मध्य प्रदेश वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में वहां पे ऑलमोस्ट 2016-17 फाइनेंशियल ईयर में 4 प्रोजेक्ट मिला था
वो 4 प्रोजेक्ट के बाद हम लोग अपना ग्रोथ इंजन वहां से सही तरह स्टार्ट हुआ समझ लीजिए। 4 करोड़ से 10 करोड़ हुआ, 10 से 12 हुआ, ऐसा इंक्रीज होते हुए 2014 2026 लास्ट फाइनेंशियल ईयर वी डिड 150 करोड़ टर्नओवर। इसमें आप देखा गया तो ऑलमोस्ट 75-80% वाटर सप्लाई एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का रहेगा, और 10% जैसा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का है, एक 10% जैसा रोड रिलेटेड वर्क्स भी किया होगा। लास्ट 12 ईयर्स में अपना ग्रोथ काफी अच्छा ही रहा है, मीन्स 4 करोड़ से 150 करोड़ तक ग्रो हुआ है। लास्ट 1.5 ईयर बैक अपना जो आईपीओ हुआ है लास्ट जुलाई ईयर एंड 2024 में आईपीओ में भी आया था कंपनी। अच्छा ही चल रहा है एट प्रेजेंट। हम अपना ऑर्डर बुक बैलेंस देखेंगे तो अराउंड 220 करोड़ का ऑर्डर बुक बैलेंस है अपने पास। अराउंड 30 प्रोजेक्ट्स अंडर प्रोग्रेस है डिफरेंट स्टेजेस में। नॉट ओनली प्रीवियस इन्वेस्टर मीटिंग्स में भी बहुत सारा डिस्कशंस हुआ है कि हम वाटर सेक्टर में ही रहेंगे। जैसा वाटर सेक्टर में रहने का इंफ्रा कंपनी के लिए तो कोई स्पेसिफिक फिक्स है नहीं है, बिकॉज आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर। स्टार्टिंग में मैंने जो बताया मैकेनिकल इंजीनियर अपना फील्ड यहाँ से स्टार्ट होगा। इट इज प्योरली ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स वो कंस्ट्रक्शन कंपनी बिजनेस डील करेंगे। सो हम लोग बिल्डिंग में भी करेंगे, पावर प्रोजेक्ट्स भी करने का प्लानिंग है, रेलवे प्रोजेक्ट्स करने का प्लानिंग है। रेलवे एंड पावर प्रोजेक्ट्स के लिए हमारा ट्राई बहुत सीरियसली चालू है। ये फाइनेंशियल ईयर में कंपलसरी हम लोग एक प्रोजेक्ट लेने का कोशिश रहेगा, करेंगे। वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और कमिंग 2-3 साल में हमारी ग्रोथ प्रीवियस ईयर से भी अच्छा रहेंगे, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। होप दैट विल बी अचीव्ड। थैंक यू मैम। Now, floor is open for Q&A. Investors, you can raise your hand or you can drop your questions in the chat box. So we have one question in the chat box. Your order book is quite healthy. Do you think you have enough execution capacity to handle larger projects without affecting the margin? Yes, yes, definitely. Based on the present resources, we can easily. Ms. Jagruti? Ms. Jagruti? Yes. So we have a next question in the chat box. पिछले कुछ सालों में कंपनी ने अच्छा ग्रोथ दिखाया है। आपके हिसाब से अगले 2-3 साल का सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर क्या होगा? हमारा टारगेट हर साल का एटलीस्ट 20% का ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ने के लिए। बट 2 साल पहले अपना 46 करोड़ से 110 करोड़ का ऑलमोस्ट अचीव हुआ था एक बार, मीन्स 250% का हुआ है। वो रूटीन में हम लोग प्लानिंग करके
कि नहीं कर सकते। आ गया अगर वो जो सप्लाई आइटम्स है ऐसा प्रोजेक्ट्स जो एक दो प्रोजेक्ट आ गया तो ज्यादा जनरल कैंडिडेट तो हर साल का 20 से 25% का ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ने का अपना प्लानिंग। Investors, you can raise your hand or you can drop your questions in the chat box. So we have few questions in the chat box. प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी रही है लेकिन ऑपरेटिंग कैश फ्लो वीक रहा है, क्या आपको लगता है कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और कलेक्शंस इंप्रूव होने के साथ कैश फ्लो भी बेटर होंगे? डेफिनेटली मैडम, कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स अभी ये अच्छा ही रहेंगे। यस मिस जेम जागृति। का रिलेटेड में ऑलमोस्ट बंद किया हुआ था कि सेंट्रल से कहीं भी सेम वो अभी फिर से स्टार्ट हुआ है, अप टू 2028 तक तो एक्सटेंड किया है, तो तब तक का कोई इश्यू नहीं होना है। तो जैसा पेमेंट्स आएंगे तो वो कैश फ्लो रोटेशन ज्यादा बढ़ेगा। यस मिस जागृति, प्लीज गो अहेड। Sir, I have a question to ask. Um, Total income for the full year FY26 crossed the rupees 150 crore mark, standing at 150.02 crore, up to 24% from 121 121.22 crore in FY25. What's the key evaluation milestone or specific large-scale pipeline projects defined by the Jal Jeevan Mission or Amrut schemes, ac- uh, scheme accelerate this growth moments is the 20 to 25% revenue growth rates substantial from FY27. 2026 से 27 और अच्छा होने का चांसेस है, एज आई टोल्ड। अभी जेजेएम ऑलमोस्ट बंद था, उसको फिर रिवोक किया है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका रिलेटेड नया प्रोजेक्ट्स आएंगे तो कैश फ्लो ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। और बैलेंस अपने पास जो था, जेजेएम का भी था, अमृत स्कीम का भी था, और स्टेट फंडिंग प्रोजेक्ट्स भी था अपने पास जो रनिंग है अभी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो एग्जीक्यूट है उस जेजेएम का ऑलमोस्ट नहीं था। देखा गया तो पुराना प्रोजेक्ट जो है क्लोजिंग में वही प्रोजेक्ट था। अभी नया प्रोजेक्ट और आएंगे, जेजेएम जो एक्सटेंड किया इसका बेस पे जैसा फंडिंग स्टार्ट हो जाएगा प्रोजेक्ट से भी बढ़ेगा। सो प्रोजेक्ट से बढ़ेंगे तो अपना स्टेक तो रहेंगे, कंट्रीब्यूशन अपना कंट्रीब्यूशन भी रहेंगे जो प्रोजेक्ट्स लेने का टाइम। सो ऑटोमेटिक और टॉप लाइन एज वेल एज बॉटम लाइन सर दोनों बढ़ सकते बढ़ेंगे। Okay, sir. Sir, one more question. Basic point to 11.02% with EBITDA reaching 16.53 crores, giving the inflationary volunteer in material inputs like steel, HDPE, and DEs.
नहीं, और अपने लिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्टेप्स। अपने लिए पाइप सप्लाई का सारा प्राइस वेरिएशन रहता है गवर्नमेंट से। जैसा प्राइस बढ़ेगा अपने लिए भी वेरिएशन मिलेंगे, प्राइस घटेगा तो अपना रिकवरी भी होगा अपना बिलिंग में से। सो पाइप सप्लाई के लिए कोई इश्यू नहीं। और अपने को स्टील सीमेंट में भी इरिगेशन डिपार्टमेंट में, वाटर सप्लाई में नहीं है। दूसरा देखेगा तो आपको डीजल पेट्रोल का जनरली अपना स्टैंडर्ड जो बढ़ रहा है इसमें डीजल पेट्रोल का, उसका अपना इम्पैक्ट तो 0.2 0.3% से ज्यादा नहीं रहे। इसका वजह से ज्यादा प्रॉब्लम है। अपना मेजर स्टेक जो है प्रोजेक्ट का कंट्रीब्यूशन जो रहेगा वो पाइप का ही रहेंगे। ऑलमोस्ट 60% ऑफ द प्रोजेक्ट वैल्यू विल बी फ्रॉम पाइप सप्लाई। उसमें तो वेरिएशन मिलेंगे अपने को, जो प्राइस वेरिएशन का क्लॉज रहता है आर टेंडर में, वो प्राइस वेरिएशन क्लॉज का हिसाब से जैसा प्राइस बढ़ेंगे वो डिफरेंशियल अमाउंट अपने को मिलेगा। बट 100% नहीं रहता है, अराउंड 90% जैसा अपने को प्राइस वेरिएशन मिल जाएगा। उसका इम्पैक्ट ज्यादा अबनॉर्मल रहेंगे वो केस में 1-8% का हो सकता है, रूटीन में तो इतना ज्यादा नहीं रहे। Okay, sir. Thank you. So we have few questions in the chat box. Infrastructure execution involves heavy upfront procurement of materials. This has kept cash from operating activities tight or negative due to changing working capital requirements. With the revenue scaling past rupees 150 crore, how did the cash generation cycle improve into FY26? And what are the targeted debtor days and inventory days for FY27? एज आई टोल्ड 2026 से 27 और अच्छा होने का हो पाए चांसेस भी है कि जैसा गवर्नमेंट का फंडिंग हर साल इंक्रीज होते जा रहा है इंफ्रा का ऊपर। बेस्ड ऑन दैट अपने को रिकवरी टाइम टाइम पे नहीं है तो भी प्रीवियस ईयर से तो बेटर रहेंगे डेफिनेटली। सो 2026 से 27 और अच्छा रहेगा। We have next question. Out of existing order book, how much orders are from water segment? Almost 75 to 80% orders are from water supply and irrigation, lift irrigation. What type of projects does company do in water segment? What are the projects only for Jal Jeevan Mission or for sewage treatment as well? We do sewerage also. At present, one project is going on in Gujarat. So what kind of order inflow would you be happy within FY27 to maintain your current growth momentum? Definitely water supply projects, but we are looking to diversify in different divisions like as I told, railways and power projects also to make the better profitability. Means bottom line increase करने के लिए हम लोग options ढूंढ रहे हैं instead of Investors, staying in you only can water supply and irrigation. Investors, you can raise your hand or you can drop your questions in the chat box. As your business grows, do you expect margins to improve or is the current margin profile likely to remain stable? जैसा जैसा कंपनी का क्रेडेंशियल मीन्स क्वालिफिकेशंस बढ़ते जाएगा, अपना बॉटम लाइन लाइक पैट बढ़ने का चांसेस ज्यादा ही रहता है। इनिशियल स्टेज पे जैसा कंपनी आगे बढ़ रहे है अपना स्टेज में देखा गया तो छोटा छोटा प्रोजेक्ट्स में कंपटीशन ज्यादा रहेगा। जो प्रोजेक्ट अचीव करने के लिए हम लोग जो पैट मेंटेन कर रहे हैं वो मेंटेन करते जा रहे हैं। जैसा क्रेडेंशियल बढ़ेंगे वो ऑटोमेटिक प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। एट प्रेजेंट अपने पास बहुत सारा जॉइंट वेंचर में भी प्रोजेक्ट्स है, जेवी का भी एक्सपेंस होता है आपके। हम डायरेक्ट जो प्राइवेट कोट करेंगे उसमें जेवी से थोड़ा बेटर प्रॉफिट्स रहेंगे, जेवी एक्सपेंस कम हो जाएगी। जैसे कंपनी बढ़ते जा रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा डेफिनेटली।
In government EPC projects, what usually helps you win orders against larger competitors? Is it pricing, execution track control, or something else? वो तो एग्जीक्यूशन का रिलेटेड में रहेंगे, और प्रोक्यूरमेंट का जो अपने पास रिलेशन मीन जिसके साथ प्रोक्यूरमेंट सप्लाई पाइप सप्लाई ले रहा है उसके साथ जो रिलेशंस रहेंगे, बेस्ड ऑन दैट अपने लिए बेटर मार्जिन्स के लिए बेटर रेट मिलेंगे, तो बेटर मार्जिन्स रहेंगे। ऐसा है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन आल्सो, कितना कंजर्वेटिवली हम काम कर पाएंगे विथ बेटर क्वालिटी विथ लेस एक्सपेंडिचर। मीन्स ये एक मशीन है जो दिन में 200 मीटर का एक्सकेवेशन, मीन्स अपना पाइपलाइन के लिए बोल रहा हूँ, खुदाई करेंगे, जो 200 मीटर करने की जगह 250 करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा। तो इसके लिए माइन्यूट लेवल पे हम लोग डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व होके वर्क करते हैं। Look on water treatment industry. Is the government floating tenders for the same? Pardon? Samira ma'am, can you please elaborate your question? Till then, we can read out the next question. Your order book is around 218 crore, which is about 1.5 times of FY26 revenue. How much of this order Yes. book do you expect to execute in FY27? अराउंड 60% इसमें से एग्जीक्यूट होगा, बैलेंस नया ऑर्डर लेना है उसमें से एग्जीक्यूट करना ये फाइनेंशियल ईयर। Is the government very aggressive on water treatment projects, or is the government floating tenders for the same? तो अग्रेसिव ऐसा कुछ नहीं मैडम, वाटर सप्लाई वाटर इज नेसेसिटी फॉर एवरीबॉडी। जैसे जैसा आपको सिटी एक्सपेंशन होता रहेगा नया एरिया में, तो वाटर सप्लाई का रिक्वायरमेंट रहेंगे, बेस्ड ऑन दैट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एज वेल एज सिविल वर्क सारा रहेंगे, वाटर टैंक्स पाइपलाइन सारा वाटर सप्लाई का हर एक एक्टिविटी एग्जीक्यूट होगा नया एरिया में। और पुराना जैसा आप देखा गया तो जनरली आप प्रोजेक्ट करेंगे तो ऑलमोस्ट 20 साल का उसका लाइफ टाइम रहता है प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करे। सो जो 20 साल पहले जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया हुआ है उसका लाइफ हो गया था, फिर से वो प्रोजेक्ट टाइम ऐसा, इट इज ए नेवर एंडिंग स्टोरी। आपको वाटर सप्लाई जब तक रिक्वायरमेंट रहे पब्लिक के लिए, वाटर के बिना तो ह्यूमन लाइफ ही नहीं है, तो वाटर रहेंगे रिक्वायरमेंट रहेंगे तो इंफ्रा में वाटर फील्ड तो रहेंगे रहेंगे। रोड नहीं है तो कच्चे रोड में भी गाड़ी जाएगा, पानी नहीं है तो क्या करेंगे। सो दैट इज द केस। So we have next question. Both of your recent contract wins include substantial 10-year operations and maintenance scope. How do you see blending a long-term O&M services changing your overall gross margins and cash flow predictability over the next few years? ऑपरेशन मेंटेनेंस का डिफरेंट डिफरेंट है। ओल्ड प्रोजेक्ट में 5 साल का ऑपरेशन मेंटेनेंस था, नया जो भी प्रोजेक्ट है उसमें 10 साल का ऑपरेशन मेंटेनेंस है। बेस्ड ऑन दैट अपना टेंडर जो कोट करेंगे उस टाइम पे हम लोग बैक लोडिंग करके करते हैं, मीन्स एग्जीक्यूशन टाइम पे 5 साल के बाद कुछ मेंटेनेंस ज्यादा आएगा, 8 साल के बाद और ज्यादा आएंगे। हर साल का हम लोग वो कैलकुलेशन करके टेंडर कोट करते हैं। सो पुराना जैसे प्रोजेक्ट्स क्लोज होते जा रहे हैं उसका मेंटेनेंस लास्ट फाइनेंशियल ईयर से माइनस 25-26 से ऑपरेशन मेंटेनेंस चालू हुआ मेजर प्रोजेक्ट्स में, अपना कमिंग ईयर्स में वो इंक्रीज होते जाएगी। जो ऑलमोस्ट टू 220 करोड़ का 218 करोड़ का बैलेंस ऑर्डर है, उसमें 50-60 करोड़ का ऑपरेशन मेंटेनेंस का वैल्यू जो कमिंग 5 से 10 साल के अंदर एग्जीक्यूट होने का।
जो ओनली सर्विस ओरिएंटेड रहेगा, ऑपरेशन मेंटेनेंस में सप्लाई वगैरह नहीं रहेगा। बट इनकम पॉइंट ऑफ व्यू में तो आपको ओनली सर्विस का चलते हुए पेमेंट्स आएंगे, लाइक पेंशन स्कीम जैसा आएगा अपने 5 साल 10 साल। So most of your projects are government funded. How has the payment cycle has been recently, and are you seeing any delays in receiving? पेमेंट डिलेस इतना ज्यादा नहीं है, बट जेजेएम का फंड नहीं हुआ है। एज आई टोल्ड, लास्ट 2 साल में जेजेएम फंडिंग नहीं हुआ, तो गुजरात स्टेट में स्टेट अपना जेजेएम प्रोजेक्ट्स गुजरात में ही है मैक्सिमम अपने पास। स्टेट सपोर्ट करके फंडिंग किया हुआ है, उसका चलते हुए एक आध महीना डिलेस है, ज्यादा नहीं इतना। अदर स्टेट्स में ज्यादा है, गुजरात में इतना ज्यादा नहीं। अपना मध्य प्रदेश एंड गुजरात का है, और मध्य प्रदेश में तो अमृत स्कीम का ही प्रोजेक्ट चल रहा है। गुजरात में जेजेएम का, अमृत का और स्टेट फंडिंग तीनों है अपने पास। Investors, you can raise your hand or you can drop your questions in the chat box. So we have next question. आप नए स्टेट्स में एक्सपांड कर रहे हैं, क्या वहां से मीनिंगफुल ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए हैं या अभी इनिशियल स्टेज में है? इनिशियल अंडर डिस्कशन, ये फाइनेंशियल ईयर में ले कंपल्सरी। Can you provide revenue breakup between services, O&M, etc.? वेल प्राइवेट सब। So we have next question. अगर फ्यूचर में जल जीवन मिशन का स्पेंडिंग पे स्लो हो जाता है तो कंपनी का नेक्स्ट ग्रोथ इंजन क्या क्या होगा? जल जीवन मिशन का ही नहीं है, एज आई टोल्ड अपना स्टेट फंडिंग का भी प्रोजेक्ट्स है, अमृत स्कीम का भी प्रोजेक्ट्स है, नल से जल योजना का भी प्रोजेक्ट्स है। इट इज वन पार्ट ओनली जल जीवन मिशन। टोटल कंपनी और वाटर सप्लाई का जो भी लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो जेजेएम पे ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं है कोई भी, नॉट ओनली वीएल। इट इज वन पार्ट ओनली। अपने का फंडिंग वहां से ज्यादा नहीं आ रहा है इनकेस, अभी तो एक्सटेंड किया तो आने का ही। अगर नहीं आ रहा है तो अपना दूसरा डिविजन तो चालू है, दूसरे मीन वाटर सप्लाई में भी दूसरा प्रोजेक्ट तो चालू है। अमृत स्कीम में चल रहा है, जल से नल से जल योजना का चालू है, स्टेट फंडेड प्रोजेक्ट्स भी बहुत है। और इरिगेशन, इरिगेशन एज वेल एज वाटर सप्लाई, अपना प्रोजेक्ट इरिगेशन एज वेल एज वाटर सप्लाई। इरिगेशन मीन्स लिफ्ट इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन मतलब वाटर सप्लाई में जैसा ही रहेगा सारा एक्टिविटीज रहेंगे उसमें, एक्सेप्ट डब्ल्यूटीपी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि रॉ वाटर ही सप्लाई होगा। वो तो ओनली स्टेट फंडेड ही रहता है। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स विल बी फंडेड बाई ओनली स्टेट्स इन एनी स्टेट। जे जे प्रोजेक्ट्स पे हम डिपेंडेड है ऐसा कुछ नहीं। और ऐसा भी एज आई टोल्ड, हम लोग दूसरा डिविजन भी स्टार्ट करने का ही प्लानिंग चालू है, लास्ट 6 महीने से बहुत एफर्ट्स लगा रहा है। तो पावर प्रोजेक्ट्स में ही जाएंगे और एज वेल एज रेलवे प्रोजेक्ट्स में भी जाएंगे। अभी वाटर सप्लाई इरिगेशन इसका ही ऑलमोस्ट 80% स्टेक है। कमिंग ईयर्स में वो जो रहेंगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वाटर सप्लाई में 30% हो, इरिगेशन में 25% हो, ऐसा ही रेलवे का 20% हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का 10%, ऐसा ओवरऑल में देखा जाएगा तो हर एक डिवीजन में अपना कंट्रीब्यूशन रहेगा। यही टारगेट कमिंग 1-2 साल के अंदर हर एक डिवीजन में वीएल रहे। Investors, you can raise your hand or you can drop your questions in the chat box.
What is your long-term vision? Are there any plans to de-risk the company from heavy revenue concentration, that is from water treatment, irrigation to other sectors? मैम आपका वॉइस ब्रेक हुआ बीच में। Sorry. What is your long-term vision? Are there any plans to de-risk the company from heavy revenue concentration, that is from water treatment, irrigation to other sectors? है ना, अभी तो बताया मैंने, इतना एक्सप्लेन किया अपना। कमिंग 1-2 साल में हर एक डिवीजन में रहेंगे ऑलमोस्ट। आप इंफ्रा में जितना भी डिवीजन होगा, मे बी रोड छोड़ के, रोड में क्या है और ह्यूज वाले में रहेगा। 2 साल के अंदर रोड प्रोजेक्ट में हम लोग 500-800 करोड़ का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर पाएंगे, ये मेरा प्लानिंग में नहीं है। बाकी सारा पावर डिवीजन में रहेंगे, रेलवे में भी रहेंगे, इरिगेशन एंड वाटर सप्लाई रहेगा, सेवरेज ट्रीटमेंट में रहेंगे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में रहेंगे। ऐसा 5-6 डिवीजन में अपना कंपनी एक्सपेंड मतलब वो स्प्लिट होगा। मीन्स सारा डिवीजन से अपने को 100% में से ये सारा डिवीजन स्प्लिट होके कंट्रीब्यूशन मिलेगी। Investors. Next question, please. So I think we have covered most of the questions, and if there are no further questions, shall we conclude the meeting? Okay. If anybody required any data information, they can share the queries to Kiran advisors so that I can give the replies. So we have one question in the chat box. सर अगर मैं आज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनूं तो आप मुझे कंपनी में इन्वेस्टेड रहने की सबसे बड़ी वजह क्या बताएंगे? आज का डेट में कंपनी का हिसाब से कमिंग 5-10 साल में तो ग्रोथ रेट बढ़िया हो रहेगा, रहना चाहिए। हमारा विजन तो है। मैंने लास्ट 2 क्वेश्चन को जो आंसर दिया था, लास्ट प्रीवियस आपका ही क्वेश्चन, तो वाटर सप्लाई इरिगेशन नहीं है, ऐसा नहीं है। 5-6 जगह में काम करेंगे, सब जगह से कंट्रीब्यूशन मिलेगा। टॉप लाइन एज वेल एज बॉटम लाइन इंक्रीज करने के लिए क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी चालू है बहुत काफी टाइम से। तो कमिंग 1-2 साल में और ग्रोथ देख सकता है लोग। इमीडिएटली नहीं बोल सकता हूँ 2027 में कुछ मैजिक होने वाला, ऐसा तो नहीं होता है। बट कमिंग 2-3 साल में तो अच्छा रहेगा बड़े, दैट आई कैन। सर लार्जर ईपीसी कंपनीज के कंपैरिजन में आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है एंड किस वजह से क्लाइंट्स आपको चूज करते हैं? क्वालिटी एंड कमिटमेंट के साथ काम होगा। हम लोग क्वालिटी कमिटमेंट छोड़ के करेंगे तो मे बी पैट और थोड़ा बहुत अच्छा हो सकता है, बट हम लोग उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो इसके लिए हमारा जो क्लाइंट्स रहेंगे, गवर्नमेंट का हो इवन प्राइवेट का भी रहेंगे, दे विल प्रेफर अस। ये एजेंसी रहेंगे तो अच्छा है, इवन गवर्नमेंट में भी लोग बोलते हैं ये कंपनी वीएल रहेंगे तो अच्छा है, प्रोजेक्ट अच्छा होगा। ऐसा ही काम कर। डेफिनेटली प्रॉफिट तो चाहिए, इन्वेस्टर के लिए तो फर्स्ट ऑप्शन वही है कि प्रॉफिट ज्यादा हो। बट वो टाइम पे आए, अभी इनिशियल स्टेज में अच्छा बढ़िया होना चाहिए। जैसे जैसे एज आई टोल्ड कंपनी बड़ा होगा तो कंपटीशन कम होगा, कंपटीशन जैसा कम होगा आपके लिए तो प्रॉफिटेबिलिटी ऐसा ऑटोमेटिक बढ़ेगा। जैसे कंपटीशन ज्यादा रहेगा उस टाइम पे थोड़ा कंजर्वेटिव जाके प्रॉफिट कम करके भी प्रोजेक्ट लेके करना रहेगा। हम वो स्टेज में हैं। 2-3 साल के बाद देखेगा तो वो स्टेज चेंज हो जाएगी।
मे बी 1-2 साल में भी हो सकता है, बट एफर्ट्स तो इसके हिसाब से रहेगा। Your recent win with HM Electromech shows your ability to leverage JVs efficiently. In the current competitive landscape, will you continue to favor the JV model for very large ticket municipal tenders, or are you aiming to scale up your individual technical bidding eligibility to go solo on larger contracts? हम लोग अपना क्रेडेंशियल का हिसाब से जा रहे हैं। जैसा आज का डेट में वीएल इंडिविजुअल टेंडर कोट करेंगे तो 30 to 40 करोड़ का, 40 नहीं, अराउंड 50 करोड़ तक का हम लोग एलिजिबल है, डायरेक्ट वीएल कोट कर सकता है। इफ आई वांट टू कोट 70, 80 और 100 करोड़ टेंडर, डेफिनेटली आई हैव टू गो फॉर जॉइंट वेंचर। हम केस टू केस जा रहे हैं। मैं 100 करोड़ का टेंडर कोट करना चाह रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट अच्छा है, ये लेके काम अच्छा रहेगा, तो हम लोग जेवी करके कर दो। जो प्रोजेक्ट अभी 40 करोड़ का है, फिर भी वो प्रोजेक्ट अच्छा है, बढ़िया है काम करने के लिए, तो हम मैं इंडिविजुअल में भी जाऊँ। वो फिक्स है, ऐसा कुछ नहीं, बेस्ड ऑन द बिजनेस रिक्वायरमेंट। So, what do you think are the biggest entry barriers in this business, and what prevents new players from competing effectively? What do you think are the best and biggest entry barriers in this business, and what prevents the new players from competing effectively? नया प्लेयर्स के लिए तो कंपटीशन ही बिग चैलेंज। जो नया नया है, हम लोग इतना साल से, मैं ऑलमोस्ट 2000 से अभी तक हूँ, ऑलमोस्ट 26 ईयर से मैं ये फील्ड में हूँ, नॉट इन बिजनेस बट इन इन दिस फील्ड, वाटर सप्लाई एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में। जो नया कोई आएंगे उसका ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो टफ रहेगा बिजनेस। What do you think is the biggest entry barrier in your business, and is it execution capability, technical qualification, client relationships, or something else? ऑल द थिंग्स। एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी नहीं रहेगा तो प्रोजेक्ट टाइम पे नहीं करेंगे और क्वालिटी के पास नहीं कर पाएंगे। एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी इज कंपलसरी। ये कॉम्पिटिटिव बिजनेस में जाना है तो आपके पास सही रिलेशंस होना है, जो सप्लायर्स जितना भी रहेंगे, स्टील, सीमेंट, सैंड, मेटल, आपको पाइप्स, वॉल्स, स्पेशल सही इतना सारा रहेंगे। आप एक वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का टेंडर बीओक्यू देखेंगे, कोई भी एक बड़ा बुक ही रहता है, इतना बीओक्यू आइटम्स रहेंगे। सो बोलने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एक रहेगा, एक टैंक ही रहेंगे, ऐसा सोचने जैसा 10 आइटम्स ही दिखेगा, बट आप पूरा इन डिटेल देखेंगे तो एक बुक रहता है, इसका एक बिल ऑफ क्वांटिटीज, इतना सारा आइटम्स रहता है। तो ये सारा जितना लोग सप्लायर्स रहेंगे सबके साथ अपना अच्छा रिलेशन होना, तो ये अच्छा रेट मिलेंगे अपने लिए काम करने जैसे। अदरवाइज टेंडर इसमें कम्पीट ही नहीं कर पाएगा। टेंडर कोट करेंगे तो टेंडर मिलेंगे नहीं। बहुत सारा कंपनीज है, आप जनरली कोई भी 10 प्रोजेक्ट्स को भी गवर्नमेंट का आप ऑनलाइन में देखेंगे तो H1 में बहुत सारा कंपनी रिपीटेडली आता है। बड़ी कंपनीज में भी होता है ऐसा, H1 मतलब हाईएस्ट कोट रहेंगे उसको टेंडर मिलेगा ही नहीं। सो ये प्रॉपर तरीके से नहीं रहेगा तो वो तो H1 रहेगा। आपको टेंडर मिलना है तो इस हिसाब से हर एक एक्टिविटी में, एग्जीक्यूशन में, सप्लाई रिलेशंस, क्लाइंट रिलेशंस, प्रॉपर बिजनेस डेवलपमेंट, डील्स, सब कुछ करना रहेगा।
From a financial perspective, what do you think will be the biggest driver of shareholder value over the next 3 years? Higher revenue, better margins, stronger cash flows, or improved return ratios? अब इम्प्रूव्ड रिटर्न्स मतलब वो तो बेटर मार्जिन के साथ ऑटोमेटिक आएगा। बेटर मार्जिन एंड टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों इंक्रीज होना है, इंक्रीज करेंगे। टर्नओवर्स भी बढ़ेंगे एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी कमिंग 3 साल 4 साल। आप जो क्वेश्चन राइज कर रहे हैं इसका हिसाब। So the government is now focusing more on wastewater treatment and reuse. Is this creating new opportunities for the company beyond drinking water projects? वो सीवरेज ट्रीटमेंट मीन्स वाटर रिसाइकलिंग वो हर हर जगह आने वाला है। इन हैदराबाद मीन्स लास्ट 2 साल पहले गुजरात से वाटर सप्लाई एंड सीवरेज डिपार्टमेंट एक है। वाटर सप्लाई एज वेल एज सीवरेज पूरा दोनों एक ही डिपार्टमेंट हैंडल करता है गुजरात में। वो लोग हैदराबाद में विजिट करके गया था। मीन्स हाउ दे आर डूइंग वाटर साइकिलिंग मीन्स सीवरेज से वाटर यूज करके उसको कमोड वगैरह अपना घर पे जो कमोड रहेंगे उसमें वो पानी यूज होता है फ्लश करने के लिए। ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे चालू है। ये एक गुजरात में भी आएगा, दूसरा स्टेट में आएगा। ऐसा तो कमिंग ईयर्स में वो वाटर रिसाइकलिंग भी अच्छा रहेगा। बहुत सारा प्रोजेक्ट्स आएंगे डेफिनेटली। और इसका अलावा और क्या करने वाला है ऑलरेडी आई टोल्ड। अपना इतना सारा मीन्स 5-6 डिवीजन कमिंग 2 साल में स्टार्ट होने वाला है, होगा। ये फाइनेंशियल में एटलीस्ट 2 नया डिवीजन तो स्टार्ट होगा। Investors, next question, please. So I think we have covered most of the questions. And if there are no further questions, shall we conclude the meeting? Okay. Thank you everyone for your time and participation. If there are any further questions, you can reach out to us at research@kirinadvisors.com. Thank you, sir. Have a wonderful day. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you everybody.